हेलो स्टूडेंट, सीबीएसई क्लास 10th चैप्टर 12 है एरियाज रिलेटेड टू सर्किल। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 12.2। क्वेश्चन नंबर 6 ए chord of a circle of radius 15 centimeter and subtend an angle at of 60 degree at the center and find the areas of the corresponding minor and major segment area of the circle and use pi value 3.14 and root 3 value. And root 3 value is 1.73. Sorry, root 3 value is, take root 3 is equal 1.73. Okay, and find the minor segment area and major segment area. In first draw a rough sketch, and this is a chord, name it as AB, minor segment, and ये क्या है, मेजर सेगमेंट। ये माइनर सेगमेंट ये एरिया और ये एरिया मेजर सेगमेंट। ये सर्कल है, ये सेंटर, और ये सेंटर के साथ में 60 डिग्री एंगल। ओके, मैक्स 60 डिग्री एंगल ऑफ द सेंटर एंड रेडियस फर्स्ट रेडियस गिवन 15 सेंटीमीटर and theta is equal 60 degree, angle 60 degree, and find out minor segment area. Right here, area of minor segment is equal pi r square into theta upon 360 minus 1 upon 2 r square sin theta. Area of minor segment is equal formula pi r square into theta upon 360 minus 1 upon 2 r square sin theta. ये क्या आपका, ये पूरा सेक्टर एरिया माइनस ट्रायंगल एरिया। तो सेक्टर एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 एंड ट्रायंगल एरिया, ट्रायंगल ओ ए बी एरिया 1 अपॉन 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ओके, एंड साइन थीटा इज इक्वल ट्रिगोनोमेट्री रिलेटेड एंड take care values, pi value 3.14, right here 3.14 into r square 15, radius 15 into 15, theta 60 upon 360 minus 1 upon 2 r square 15 into 15 and sin theta value is 60, so take as sin 60 degree. Okay, 1 and 6. Okay, and 314 upon 100, पॉइंट को हटाया 100 लगे, एंड 15 into 15 into 1 by 6 minus 15 multiply 15 225 upon 2 and sin 60 value, you know sin 60 value is equal root 3 by 2. to take a root 3 by 2 and 3 5 ja 15, 3 2 ja 6, 2 1 ja 2, 2 से cancel 157 multiply 15 multiply 5, 15 5 ja 75 upon 100 minus 225 multiply root 3 value, and root 3 value is 1.73 upon 2 2 ja 4. Okay, and do multiply here. When multiply 157 multiply 75 is equal 11775 upon 100 minus 225 multiply 1.73 to 225 multiply 1.73 and 225 multiply 1.373, find out 389.25 upon 4, divide by 100 117.75 minus, जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे, when divide by 4 and find out 97.31 and subtract, when subtract is equal 5 minus 1 is equal 4, 7 minus 3 is equal 4
0.7 minus 7 is equal 0 and 11 minus 9 is equal to centimeter square. This is area of minor segment. Area of minor segment. And first question do and find out major segment area. And next find out major segment area. So find out area of major segment. Area of major segment. Physical formula: area of circle. Area of circle minus minor segment area. Minor segment area. Okay. Area of major segment formula: area of circle minus area of major segment. Area of minor segment. तो area of circle not find out. तो first find out area of circle formula pi r square minus area of major segment already find out 20.44. 20.44. Put values pi की value put here 3.14 into r square 15 into 15 minus 20.44. when multiply जब multiply करेंगे 15 multiply 15 3.14 225 3.14 multiply by 225 minus 20.44. जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इनको इनसे मल्टीप्लाई करोगे तो फाइंड आउट 706.50 माइनस 20.44. जब सब्ट्रैक्ट करोगे आप 10 में से जब आप इसमें से माइनस करोगे माइनस 20.44 तो क्या फाइंड करेंगे 686.06. ये आपका आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आपका आ गया एरिया ऑफ मेजर. अगेन लुक एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. माइनर सेगमेंट एरिया ऑलरेडी फाइंड आउट 20 पॉइंट. एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर. पाई वैल्यू 3.14 इंटू 15 रेडियस 15 इंटू 15 15 मल्टीप्लाई 15 225 मल्टीप्लाई 3.14. तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा. टेक केयर आफ्टर 2 डिजिट पॉइंट वो माइनस करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 686.06 एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट और ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. क्वेश्चन नंबर 7. ए chord of a center a chord of a circle of radius 12 centimeter given. Radius is equal 12 centimeter and subtend an angle 120 degree at the center. और सेंटर पर जो एंगल बनता है वो 120 डिग्री. इसमें 60 डिग्री था इसमें 120 डिग्री है. इसमें रेडियस 15 डिग्री थी 15 सेंटीमीटर. इसमें रेडियस 12 सेंटीमीटर. एंड फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल. एंड फाइंड आउट एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट मीन्स एरिया ऑफ सेगमेंट. एरिया ऑफ सेगमेंट का मतलब होता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एरिया फाइंड करो. एंड यूज पाई वैल्यू 3.14 एंड √3 वैल्यूज 1.73 और रेडियस ये दे रखी है थीटा वैल्यू एंड पाई वैल्यू एंड √3 वैल्यू. एंड फाइंड आउट एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का मीन्स एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. फाइंड आउट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट यू नो फॉर्मूला. फाइंड आउट रेडियस 12 सेंटी थीटा 120 डिग्री पाई वैल्यू 3.14 √3 वैल्यू. एंड फाइंड आउट एरिया ऑफ सेगमेंट. एरिया ऑफ segment. Area of segment means area of minor segment and pi r square into theta upon 360 minus 1 upon 2 r square sin theta. Okay, and put values. Pi value 3.14, r square radius 12 into 12 and theta 120 upon 360 minus 1 upon 2 r square 12 into 12 into sin theta. Theta value is 120, so sin 120 degree. And 0 0 12 1 ja 12 12 3 ja 36 3 4 ja 12 2 से cancel 6 and 3.14 multiply 12 4 ja 48 minus 12 6 ja 72 into sin 120 value. You know sin 60 value. Sin 120 value is equal √3 by 2.
जो वैल्यू साइन 60 की होती है वही वैल्यू सेम वैल्यू इज साइन 120 वैल्यू. सो साइन 120 वैल्यू इज √3/2 एंड पुट हेयर √3/2. 2 से कैंसिल 36. व्हेन मल्टीप्लाई, जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसको, व्हेन मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 48, फाइंड आउट 150.72 माइनस 36 मल्टीप्लाई √3 वैल्यू. टेक है √3 वैल्यू 1.73 150.72 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे. जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 1.73 मल्टीप्लाई बाई 36 इज इक्वल फाइंड आउट 62.28. और अब आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा 150.72 माइनस इसमें से क्या माइनस करेंगे 62.28. तो जब आप माइनस करोगे तो फाइंड आउट 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर इज ओवर आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. और क्वेश्चन नंबर 8, ए हॉर्स इज टाइड टू ए peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope. इसका मतलब, और पाई वैल्यू दे रखी है 3.14. हमें दे रखा है एक स्क्वायर फील्ड शेप का फील्ड है, स्क्वायर शेप का फील्ड है. तो स्क्वायर शेप फील्ड है और इस फील्ड की साइड दे रखी है 15 मीटर. ये 15 मीटर है टोटल. इसका कोई मतलब नहीं है, ये यूजलेस है. बाई मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप. आपके पास में एक 5 मीटर लॉन्ग रोप है और उससे क्या बंधा हुआ है, घोड़ा. ए हॉर्स इज टाइड, एक हॉर्स को बांधा गया है वन कॉर्नर में. देखो ये एक कॉर्नर है, इसमें एक घोड़ा बांधा गया है, ये घोड़ा है. इस घोड़े की रस्सी है ना, ये रस्सी है, ये 5 मीटर है. तो ये घोड़ा जब इसके अंदर घास चढ़ेगा तो यहाँ इस एरिया में चढ़ पाएगा. और ये हो गई थीटा वैल्यू हो गई. तो आपके पास में घोड़े की रस्सी है, वो रस्सी है 5 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर लॉन्ग रस्सी दे रखी है. रेडियस 5 मीटर एंड थीटा वैल्यू इक्वल यहाँ 90 डिग्री एंगल बनेगा, 90 डिग्री. फाइंड आउट नेक्स्ट, फर्स्ट फाइंड आउट पाई वैल्यू 3.14 एंड फर्स्ट फाइंड आउट द एरिया ऑफ that part of the field in which the horse can graze is equal formula is equal use your formula area of a sector. Pi r square into theta upon 360 degree. Pi value is 3.14 given 3.14. R square radius 5 into 5 theta value 90 degree upon 360 degree 1 and 4. When cut cancel 2 to the 4, when divide by 2 1.57 okay, and 1.57 multiply 5 5 जा 25 upon 2. when multiply, जब आप मल्टीप्लाई करोगे किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1.57 मल्टीप्लाई बाई 25 फाइंड आउट 39.25 एंड डिवाइड बाई 2 एंड फाइंड आउट और आंसर 19.625 मीटर स्क्वायर. इस एरिया में ये घोड़ा घास चर पाएगा. नेक्स्ट आपको फाइंड आउट क्या करना है. नेक्स्ट इसमें पूछा है कि इसकी रस्सी है ना वो इंक्रीज कर दें. नेक्स्ट द इंक्रीजिंग एरिया, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. सेकंड, द इंक्रीजिंग इन द ग्रेजिंग एरिया. जो इंक्रीज एरिया होगा मतलब जहाँ पर घोड़ा घास चढ़ेगा. इफ कंडीशन गिवन द रोप 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर. रस्सी को 5 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर लॉन्ग कर दें तो जो इंक्रीजिंग एरिया है फाइंड आउट करना है. और यूज पाई वैल्यू 3.14 एंड एरिया ऑफ दैट पार्ट दैट
part, area of that part of the field in which the horse can graze is equal formula pi r square into theta upon 360 degree. Same formula use. An area of that part of the field in which the horse can graze is equal formula pi r square theta upon 360 degree. Same formula, but pi value 3.14, radius change into 10 meter, radius 10 meter, and pi value is 3.14 into r square 10 into 10, रेडियस चेंज 5 मीटर से चेंज होकर 10 मीटर हो गई, इंटू 90, थीटा वैल्यू सेम 360, 1/4, पॉइंट को हटाएंगे इसमें 314 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100 इंटू 1/4, कैंसिल, 314 डिवाइड बाई 4, जब आप 314 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। अब ये आ गया, जब ये वो एरिया आ गया जब रस्सी 10 मीटर हो जाएगी। अब इंक्रीजिंग एरिया फाइंड करना है, ग्रेजिंग एरिया माइनस कर देंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे, तो हम किस में से क्या माइनस करेंगे, 19.625 माइनस 78.5, जब आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। यह आपका इंक्रीजिंग एरिया। ओके, लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। A brooch is made with silver wire and in the form of a circle, सर्किल की फॉर्म में बना है। तो एक ब्रूच बना हुआ है सिल्वर वायर से और सर्किल की फॉर्म में, तो हम बना रहे हैं। वी हैव गिवन फिगर इन दिस क्वेश्चन, फिगर दे रखी है हमें इस क्वेश्चन में, ये हमने ब्रूच बना दिया सिल्वर वायर से। तो ये सिल्वर वायर लगेगा ब्रूच के अंदर, तो ये होगी सरकमफ्रेंस, होगी क्या होगी, सरकमफ्रेंस। एंड फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो ये टोटल लेंथ जो भी सिल्वर वायर लगा है वो फाइंड करना है। तो ये सिल्वर वायर लगा है तो इसका मतलब ये हो गया सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, एंड ए ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल फॉर्म में, तो ये सिल्वर वायर हो गया, तो इसका मतलब सरकमफ्रेंस विथ डायमीटर 35 mm, डायमीटर, डी मीन्स डायमीटर 35 mm, so radius is equal 35/2 mm, okay, and the wire is also used, वायर को also और भी यूज कर रखा है इज मेकिंग 5 डायमीटर, इसमें 5 डायमीटर और बना रखे हैं विच डिवाइड, जो 5 डायमीटर हैं वो डिवाइड करते हैं द सर्किल को इनटू 2 इक्वल सेक्टर्स में, मतलब ऐसे 5 डायमीटर और ड्रॉ कर रखे हैं इसने। तो फर्स्ट फाइंड क्या करना है अपने को, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर इजिकल फॉर्मूला यूज करते जाते हैं। एक तो हो गया, बताओ 2πr, ये 2πr क्यों लगाया आपने, ये वायर है यहाँ से यहाँ तक का ये वायर है 2πr, क्यों है, क्योंकि ये सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब इसमें है द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इज इन मेकिंग 5 डायमीटर, हेयर 5 डायमीटर एंड फर्स्ट डायमीटर and second diameter, third diameter, fourth diameter और ये 5 डायमीटर हो गया। देखो फर्स्ट डायमीटर, सेकंड डायमीटर, थर्ड डायमीटर, 4 और ये 5th डायमीटर, 5 डायमीटर प्लस 5 इंटू डायमीटर,
तो ये टोटल वायर आ जाएगा, क्योंकि ये तो हो गया 2πr हो गया, 1 डायमीटर, 2 3 4 5 डायमीटर, तो 5 इंटू डायमीटर, एंड तो ये आ जाएगा टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो 2 इंटू पाई वैल्यू इज 22/7, पाई वैल्यू नॉट गिवन, सो राइट यार 22/7। रेडियस डायमीटर 35 mm, सो रेडियस 35/2 प्लस 5 इंटू डायमीटर, 1 डायमीटर इज 35, 7 1 7, 7 5 35, 2 से 2 कैंसिल, 22 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल 110 प्लस 35 मल्टीप्लाई 5 175, व्हेन वी एडेड इज इक्वल 285 mm। ये वायर है, और वायर एरिया होता तो mm स्क्वायर में, लेकिन ये वायर लेंथ है, टोटल वायर ऑफ सिल्वर वायर लेंथ, सो वायर लेंथ इन mm 285 mm टोटल वायर। एंड नेक्स्ट फाइंड आउट द एरिया ऑफ ईच सेक्टर फाइंड आउट ऑफ द ब्रूच, ईच सेक्टर एरिया फाइंड आउट। तो ये आपका बना है, ये सेक्टर बना है, 1 सेक्टर, 2 सेक्टर, 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 इक्वल सेक्टर्स गिवन, 10 इक्वल सेक्टर्स। यस टेल मी डायमीटर इज इक्वल 35 mm, रेडियस 35/2 mm, ओके। एंड सेक्टर के लिए हमें क्या चाहिए, थीटा वैल्यू, कि एंगल कितना बन रहा है, इस सेंटर के चारों तरफ जितने भी एंगल बनेंगे 360 डिग्री, ओके। एंड सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए सेंटर इज 360 डिग्री, and theta value is equal 360 degree, but here 10 sectors, how many sectors, 10 sectors, so divide by 10, तो theta value is 36 degree। look at again, इसके चारों ओर 360 डिग्री, लेकिन ये 10 बॉक्सेज हैं, 10 बॉक्सेज हैं, तो 10 बॉक्स डिवाइड बाई 10 इज इक्वल थीटा वैल्यू 36, एंड एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एंड फाइंड आउट एरिया ऑफ ईच सेक्टर, सेक्टर एरिया फॉर्मूला पाई r स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री, पाई वैल्यू 22/7, r स्क्वायर, रेडियस डायमीटर 35, रेडियस 35/2, r स्क्वायर मीन्स राइट 2 टाइम्स, एंड थीटा वैल्यू 36/360 डिग्री, कैंसिल करेंगे 1/10, 7 5 35, अगेन नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल करेंगे, 22 इंटू 5/2 मल्टीप्लाई 35/2 मल्टीप्लाई 1/10, 5 1 5, 5 2 10, 2 से कैंसिल करेंगे 11 इंटू 35/2 2 4, वैन मल्टीप्लाई 385/4, जब आप इसको डिवाइड करेंगे 385 डिवाइड बाई 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 96.25 mm स्क्वायर। ये एरिया है, और एरिया इज ऑलवेज स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर mm, ओके।